Hello everyone, this video is virtually for anyone who is preparing for civil services or is thinking of getting into preparation. So 2026 prelims is over now and it's been good, 10 days. Well, not good actually, but still it has passed and students, teachers, everyone is disappointed, frustrated, angry that uh, the paper was absurd, out of the syllabus, and the questions weren't really how they used to be, and on and on. So, grants are over, everyone is uh, hopefully done with this, especially the students. So, now what I wanted to talk about here is कि जो होना था काइंड ऑफ वो हो चुका है एंड नाउ व्हाट्स लेफ्ट इज कि स्टिल 14-15 हज़ार लोग इसे पास कर लेंगे एंड पास करेंगे एक्चुअली दे सेट फॉर द मेंस एंड वो भी हो जाएगा उसमें से भी 3,000 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे एंड द एक्चुअल 1,000 जिसके अराउंड वैकेंसीज होती हैं दे स्टिल कम एंड पीपल विल गेट जॉब्स. So what was different about the process this year जो कि हर साल नहीं होता था. And this video is going to be about career, jobs, a very personal video. This video is covering a broad subject of कि should you even continue this preparation, and if you haven't even started, should you even get into this. तो what I think is कि हर साल जो प्रोसेस होता है वही इस बार भी होगा. इस बार क्वेश्चन थोड़े से अजीब थे, पहले थोड़े से कम अजीब होते थे, राइट. तो मेरा ये सवाल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस इस बार अगर वैसे ही होते जैसे जैसा ट्रेंड शो करता है, जैसे हर साल आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू हैव पास दैट? वुड यू बी वन ऑफ द 14,000? If yes, then maybe this video might not give you that insight that you are looking for. But for the majority, for the 5,86,000 people, assuming that 6 lakh wrote this, paper uneven आया and syllabus ही नहीं आया. What has changed? You're still not going to pass this. हाँ ठीक है, कमीशन की गलती थी, उसने सही पेपर नहीं दिया एंड एवरीथिंग. सवाल उठने चाहिए बीच में क्या चल रहा है, सिलेबस में क्यों मेंशन नहीं कर रहे, सारी बात ठीक है. बट इज़ ऑल ऑफ दिस मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर करियर टू यू? क्या ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है? एंड सेकेंड क्वेश्चन कि even if you have passed this by a margin, though there still means there is still interview. It is very obvious that the part of this process, this is exam, recruitment through this exam requires luck, that's for sure. But उसके बाद भी लक फैक्टर का तो हम कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद भी would you be willing to say कि with the amount of study that you have done कि तुम इसे पास कर लेते? The answer might come out as a yes or no. So let it be. But for the majority of people जिनका आंसर अभी भी ये आ रहा है कि नहीं, प्रोबेबली नहीं पास कर पाते, what commission did was wrong, but still अगर वैसा भी आता तो भी we won't be able to do this. अभी कट ऑफ 85-90 जा रही है, sources are saying this. लेट्स से 75 भी जाती है तो तब नॉर्मल 85-90 जाती. तो इट्स नॉट लाइक कि जितने अगर पहले जैसा पेपर आता तो यू वुड हैव डन अ फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर एंड देयर तो उससे हो जाता. नो, हर कोई उतने क्वेश्चंस करता प्रोबेबली, राइट. सो द क्वेश्चन इज यू स्टिल मे नॉट क्वालिफाई दिस इवन इफ यू हैड तो मेंस तक नहीं जाते, राइट. सो ऑल दैट इज कमिंग टू yourself, and this might seem like
I'm blaming you or something like that, but there's a broader view. Hold on. तो what the system did was wrong. उसे सिलेबस के बाहर सवाल नहीं देने चाहिए थे, राइट? एंड अगर उसने किया होता सही से काम तो प्रोबेबली यू वुड हैव गॉटन अ चांस. ओके, बट सी देयर आर स्टिल गोइंग टू बी 14,000 पीपल जो कि इसे भी क्वालिफाई करके जाएंगे और उन्हें जॉब्स मिलेंगी, ठीक है? उनमें से 1,000 लोगों को मिलेंगी, 13,000 वहाँ भी रह गए. मान लेते हैं 3-4 हज़ार would do something about themselves and sit for another attempt, and let's not consider them. 10,000 वहाँ के, 4 लाख 84 या 86,000 यहाँ से, roughly 5 लाख लोग. See, the people you are taking advice from or probably should take advice from is the coachings, obviously, and the people who have cleared this exam or gave multiple attempts, and that's absolutely right. You should do that. But the thing is कि जब सिस्टम का कोई भी हिस्सा होता है ना, whether it is the system of the services or it is the system of providing coaching around civil services, so the thing is कि everyone says keep a plan B or keep a backup as an obligation and leaves it there. No course, no person is going to stand there, talk about and guide you about the backup. Bas they say कि have a plan B and it's very important and you should not probably prepare for UPSC. But let's go on. Let's start our first chapter. Let's start economy. Let's start our first topic. Let's start with ancient medieval, right? तो द थिंग इज कि कोई भी उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता है जितना लेना चाहिए. वी जस्ट हैव द नंबर्स 4-5 लाख लोग, एंड लेट्स नॉट इवन लुक एट दैट नंबर 4-5 लाख लोग का. लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ कि कितनी जॉब्स मिलती हैं हर साल, रफली 1,000, एंड उसमें भी ऐसी जॉब्स दैट यू वुड वांट कि यू वुड कंटिन्यू डूइंग देम, वो कितनी होती है? सी I'd say कि 300-400 लोग तो वुड नॉट सेटल फॉर द जॉब्स, राइट? लोग IRS छोड़ के आ रहे हैं, तो हम उसके नीचे की जॉब्स की तो बात भी नहीं कर सकते. तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्रोसेस काइंड ऑफ रिग्ड इन इट्स ओन स्पेशल वे. एंड तुम्हें एज एन एस्पिरेंट ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. तुम्हें ये लगता है योर ड्रीम ऑफ द IAS और द IPS और द IRS के एक बार बस जॉब मिल जाए एंड मेरा काम हो जाएगा. थिंग इज़ कि जॉब मिल कैसे जाएगी? जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जो इन्फिनिटी तक वर्ल्ड चलता रहे और हम इसे ट्रेस करते रहें तो भी ख़त्म नहीं होगी, तो भी ऑल पीपल वुड नॉट गेट द जॉब्स. तो वो तुम तक कैसे ख़त्म हो सकती है? तुम्हें कैसे जॉब मिल सकती है? तुम्हारा लाइन में नंबर कैसे आ सकता है? एंड सी इट्स वेरी ऑब्वियस टू बिलीव कि मैं मेहनत करूँगा एंड एवरीथिंग, बट ये जो अभी हुआ है दिस इज़ अ चेक कि नहीं, तुम्हारी मेहनत से सब कुछ नहीं हो सकता. लक हमेशा बैकग्राउंड में घूमता रहता है एंड पीपल टॉक अबाउट इट. कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते. एस्पिरेंट्स प्रोबेबली कभी नहीं समझते हैं अनटिल अनलेस उन्होंने कई सारे अटैम्प्ट्स दे रखे हैं एंड दे हैव कम वेरी क्लोज टू सिलेक्शन. तो एवरीवन इज़ लाइक लक मैटर करता है. एस्पिरेंट्स आर लाइक कि हाँ मैं मेहनत करके कर लूँगा. बट द थिंग इज़ कि अभी ये जो हुआ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? क्या करोगे इसका, बताओ? कैसे मेहनत कर लोगे? सिलेबस के बाहर का पढ़ लोगे क्या? सिलेबस कम है? या उसके बाद भी जो मेंस होगा उसके बाद भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कौन सा पैनल मिलेगा, उसके बाद जॉब मिलेगी, उसमें पता नहीं कौन सा कैडर, कौन सी जॉब मिलेगी, वो पसंद आएगी या नहीं, दोबारा बैठोगे. इसके लिए कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है, फिर अपने भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो जो सैम्पल है ना, जो सेलेक्ट होता है, जो फाइनली खुद को सक्सेसफुल कहला पाता है, वो उससे और भी छोटा है जितना दिखाया जाता है. एंड
तुम सारी चीज़ें छोड़ के अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि 100 200 300 सीट्स में तुम्हें वो जॉब मिल जाए, तो उसके लिए इफ़ यू आर फ्रॉम अ अपर क्लास फैमिली, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि तुम्हारा जो बैकअप है ना, दैट योर योर बैकअप इज़ मेड ऑलरेडी। वो तुमने बनाया नहीं है बस, बट योर बैकअप इज़ देयर। यू विल नेवर स्टार्व और यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन जहाँ पे यू आर नॉट ओके, ठीक है? दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ अस जो अपर क्लास फैमिली से नहीं आते, दिस इज़ सीरियसली नॉट ओके। यहाँ पे इसके लिए भागना आई थिंक इज़ नॉट एट ऑल ओके। अभी प्रीलिम्स ख़राब हो गया एंड पीपल आर लाइक कि इस बार इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगली बार प्रीलिम्स नॉर्मल हो जाता है या अब तक होता है, उसके बाद लग कहीं चला जाएगा क्या? इस बार प्रीलिम्स में ऐसा हुआ है, अगली बार प्रीलिम्स में हुआ तो बहुत गड़बड़ है, बट अगली बार प्रीलिम्स में ना हो के मेंस में ऐसा हो गया, फिर उसके अलावा इंटरव्यू में क्या चल रहा है, वो कभी मॉक इंटरव्यूज़ रेप्लिकेट कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। ऑल इन ऑल इस पूरे प्रोसेस में ये बिल्ट इन है इतनी एब्सर्डिटी, ये उसका पार्ट है। वो बस इस बार हम बाहर वाले लोगों को दिख गई है जो उस प्रोसेस में अभी इंडल्ज नहीं है, तो लोग उससे होके गुजरे, दे गॉन थ्रू दैट। हाँ, डायरेक्टली नहीं गए हो, इनडायरेक्टली गए हो उससे। अगर आप प्रीमियर कॉलेजेस से निकल के जा रहे हो, आपने पहले ही MBA वगैरह कर रखा है, जॉब्स कर रखी हैं, तो आप आपको वो क्वेश्चन एब्सर्ड थोड़ी लगेंगे। आपका तो पहले की मेहनत काम आ गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब इतना बड़ा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है पहले से और जॉब्स इतनी कम है, तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो सारा नंबर है 99.9% का, वो हटाया जा सके। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। आप कमीशन को गलत बोल रहे हो या सारी चीज़ें, एंड सी आई डोंट केयर, एंड ऑनेस्टली, और केयर भी करूँ तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? इफ़ यू ऑन द कमीशन, तो तुम क्या वैकेंसी से ज़्यादा लोगों को हायर कर लोगे क्या? राइट? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो होगा और चीज़ें शफल होंगी, तुम उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। द ओनली पार्ट रॉन्ग अबाउट दिस होल सिचुएशन इज कि तुम उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हो सोलली विदाउट हैविंग अ बैकअप, विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर कि लुक फॉर समथिंग एल्स, और इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखो। आप किसी ताले को चाबी से फोर्स करके खोलना चाह रहे हो, जबकि दैट रिक्वायर्स 2 कीज़, अ की ऑफ हार्डवर्क एंड अ की ऑफ लक। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मैं एक ही चाबी से खोलूँगा और पूरी मेहनत से पूरी दम लगा के खोलूँगा। नहीं हो पाएगा। एंड फिर इतने सारे जब एग्जाम्पल्स आसपास हैं, जब देखते हो, तो डू नॉट गेट, मैं नहीं बोल रहा डिमोटिवेट हो जाओ और वो सब छोड़ के कुछ और कर लो। बट द थिंग इज़ कि वो सब देख के एटलीस्ट इतना समझो तो कि विल पावर से काम नहीं चलेगा। शोइंग अप इज़ 80% राइट, वो आप मेहनत कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन कीप ऑन प्रिपेयरिंग, बट वो वैकेंसीज, वो नंबर कहीं नहीं चला जाएगा ना यार। वो चीज़ कौन याद रखेगा? एंड फिर आप जब एक सर्टेन एज को क्रॉस कर जाओगे, तो आप सोचोगे कि ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, वो नंबर फिर भी वहीं रहेगा। कंपाउंडिंग वगैरह ईयर ऑन ईयर प्रिपेयर करना एक लेवल तक ही कंपाउंड करते हैं, एंड आप वहीं तक कुछ कर सकते हो उनके बारे में, बट उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। सोचो, जिन लोगों ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स भी किया होगा, मेंस भी किया होगा, इंटरव्यू भी किया होगा, और उनका ये लास्ट अटैम्प्ट होगा 26 वाला, और 1000 तो सेलेक्ट हो गए होंगे मेंस देने के बाद 3000 में से। जो 3000 शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे इंटरव्यू के लिए, 2000 नहीं हुए होंगे। उन 2000 में से सोचो उन 2000 बच्चों का क्या हाल होगा जो इस बार प्रीलिम्स एकदम ऐसा आया था। एंड द रियलिटी इज़ कि प्रीलिम्स नॉर्मल भी आता ना, तो थोड़ा सा परसेंटेज हायर हो जाता है लोगों का प्रीलिम्स क्लियर करने का, और एवरीथिंग फ्रॉम दोस 2000, बट स्टिल हर कोई IAS नहीं बनता ना यार। एंड
ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिस्टम रिग्ड है और वो सारी चीज़ें सब या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ठीक हैं। यूपीएससी फिर भी एक बहुत फेयर इंस्टीट्यूशन है, या एटलीस्ट माना जाता है ऐसा, ठीक है। पर आप उस नंबर को क्यों ध्यान में नहीं रख रहे हो? वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से चेंज हो जाएंगे? आप मेहनत से चेंज कर लोगे उन्हें, राइट? तो प्लान बी वगैरह लोग इसे बहुत फिलोसॉफिकल मान के चलते हैं कि बहुत फिलोसफी वाली बात करती है किसी ने अगर प्लान बी बोल दिया। ऑनेस्टली जब मैं सीरीज़ वगैरह देखता था ना, स्प्रिंट्स वगैरह, तो मेरा भी यही रहता था। बहुत ज़्यादा कुछ समझ तो आता नहीं था, बहुत पहले की बात है, जब इन सब में नहीं थी जानकारी, और तब सोशल मीडिया भी नहीं था इतना ज़्यादा, तो फैलती भी नहीं थी। फिर प्रीलिम्स के ऐसे वो भी नहीं हो रहे थे, ऑल्दो बोलते हैं कि 18-19 का पेपर कठिन था, जो भी। तो तब हमें भी बहुत फिलोसफिकल लगता था जब वो भैया जो थे उनके बारे में बात होती थी, उनकी सिचुएशन वगैरह। फिर उसमें से कुछ लोग बोलते थे प्लान बी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक वो इस प्रोसेस का ही पार्ट है। आप प्लान बी से ही जा सकते हो, इधर वही सेफ रास्ता है। आप वरना आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पैराशूट्स, आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से जंप मारो एंड आप लैंड कर जाओ किसी पेड़ के ऊपर, कैनोपी के ऊपर, एंड आपको हर्ट ना हो। आप इस तरह का प्रोजेक्ट करके चल रहे हो अपने दिमाग में विद द करंट सिचुएशन, इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्लान बी। वैसे प्लान बी इसके भाई पैराशूट से उतरेंगे, नीचे कैसा भी हो, एटलीस्ट देयर इज़ लेसर चांस कि ऑफ डेथ, राइट? अभी तो आप नंगे उतर रहे हो विदाउट हैविंग एनीथिंग। अभी तो आपको पानी भी मिल जाएगा ना, तो भी इट्स नॉट ओके, बिकॉज इफ़ यू फॉल फ्रॉम सच अ हाइट विद दिस वेलोसिटी, तो some of you would know कि the water becomes like a rock, like floor. You won't be able to penetrate it. You will still break a lot of bones, may even die, right? So plan B is the part of process, and plan B is not something कि कुछ एकदम ही अलग कर लेना है। इनफैक्ट एकदम अलग अलग करना was यूपीएससी। प्लान बी तो इसके आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें पोस्ट करो, एंड फिर उसमें जॉब्स वगैरह देखो, टीचिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर सिविल सर्विसेज के लिए आ रहे हो, सेंट्रल वाले सीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आई वुड नॉट से कि बैकअप में कोई स्टेट पीसीएस को, वो आई डोंट थिंक इज ओके। ऐसे थोड़ी चलता है। बैकअप शुड बी या तो ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब्स हैं, इसे थोड़ा सा बैकअप मान सकते हो, गिवन दैट कि आपने उसका सिलेबस कर रखा है। एंड नोट दैट कि उसका सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस सेम नहीं होता। आप जीके बोल के सेम जीके थोड़ी पेल सकते हो हर जगह। तो अगर आपने उसका सिलेबस थॉरोली 3, 4, 6 महीने